Okay. Am I audible to all? Am I audible to all? Yes, sir. Okay, fine. क्या किया था लास्ट लेक्चर में? What we have done? Sir, graph. Okay, हाँ. Acceleration time and velocity time graphs. Okay. Convert करने के लिए बताया था ना acceleration time और velocity time. Yes. Okay, ठीक है. Now, अच्छा displacement time graph introduce किया है कि नहीं? Have been introduced the graph of displacement and time? शुभम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ इंट्रोड्यूस किया था? यस या नो? So you only told what is there, but you didn't like explain or give any sums on it. Okay, fine. So चलो, we'll be having a simple relation. Displacement और time का relation we know is what? S is equal to ut plus half at square. ये relation होता है ना displacement और time का. S is equal to ut plus half at square. बराबर. As we are dealing for constant acceleration here, है ना, इस केस में हम constant acceleration के बारे में डील करते हैं. Is it the relation? ये relation है क्या? Yes. Okay. Now you focus on here. जो मैं बता रहा हूँ ढंग से समझना what I'm trying to say. So this is the relation between displacement and time. अब देखो, let me assume that my initial velocity is 0. हम ऐसा assume करके चलते हैं कि हमारा initial velocity 0 है. So if I'm taking my initial velocity as 0, तो आपको क्या relation मिलेगा? S is equal to 0 into t plus half into acceleration into t square. अगर आप देखोगे so this will become half into at square. होगा या नहीं? हाफ इंटू एटी स्क्वायर. ओके, अब देखिए, इफ माई एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहे हो, ये वाला टर्म पॉजिटिव ले रहे हो, सो दिस इज हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, एंड हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन को कांस्टेंट पकड़ा है. सो विल दिस ग्राफ वी लाइक ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा क्या ये? Yes. करेक्ट. इफ माई एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये हाफ इंटू एक्सेलरेशन, ये टर्म आपका कांस्टेंट है. ये टर्म आपके ग्राफ के नेचर को चेंज नहीं करेगा, उसके स्लोप को जरूर चेंज करेगा, बट दैट विल नॉट चेंज द नेचर ऑफ ग्राफ. So if my acceleration is positive, then this graph will be like y is equal to x square. होगा या नहीं y is equal to x square का ग्राफ ये? Yes या no everyone? Yes. Okay. You remember, do you remember the graph of y is equal to x square? कुछ याद है कैसा ग्राफ प्लॉट किया था हमने? दिस इज माई एक्स एक्सिस. हाँ, ओके. एक्स डैश, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है. सो द ग्राफ ऑफ y is equal to x square was something like this. ये ग्राफ का कॉन्केविटी, कॉन्केव अप होता है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ होता है. देखो, दिस इज कॉन्केव अप. डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? सो y is equal to x square is concave up. कॉन्केव अप, ग्राफ की कॉन्केविटी ऊपर की तरफ होती है. दिख रहा है? ये ऐसा बाउल है जिसका ये कॉन्केव ऊपर की तरफ है, सीधा कटोरा है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. ओके, ओके, ठीक है. हु हैज नॉट जॉइंड येट? निमय इज नॉट देयर. और एक और कौन नहीं है? Ishita, Medans is there, Naisha, Ishita, both of them, Shubham is there, Trisha. एक और कौन नहीं है? I was on hold. Can you repeat whatever you have thought? Which one बेटा? Which one? You type it. Actually आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे पास. आप टाइप करके एक बार मुझे बताइए what you want to say. निमे नहीं अटेंड की, ज्वाइन नहीं किया, और कौन से एक ने अटेंड नहीं कर रहा है? Who is there?
शीता मैदान ठीक. Okay, so this is the graph of y is equal to x square और y is equal to x square का ग्राफ कॉन्केव अप, कॉन्केविटी इसके ऊपर की तरफ होगी, राइट? एंड द ग्राफ ऑफ y is equal to minus x square will be something like this. अगर आप प्लॉटिंग करोगे y is equal to minus x square का, so this is my x, ये x dash, ये y और ये y dash. So y is equal to minus x square का ग्राफ कुछ ऐसा होगा. This is the graph of y is equal to minus x square. अच्छा मुझे बताओ बेटा y is equal to minus x square का ग्राफ कॉन्केव अप है कि कॉन्केव डाउन है? I'll plot this again. Concave down. Concave down. Okay. Concave down. Okay, correct. Concave down. So y is equal to x square. This is the graph of y is equal to minus x square. So y is equal to x square का ग्राफ कॉन्केव अप है and y is equal to minus x square का ग्राफ कॉन्केव डाउन है. अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है एंड आई एम हैविंग एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव. तो अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कॉन्केव अप होगा या कॉन्केव डाउन होगा? विल इट बी कॉन्केव अप की कॉन्केव डाउन? Concave up. कॉन्केव अप, ध्यान रखना. सो इफ माय एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, अगर आप उस केस में ग्राफ बनाओगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, सो आई एम अज्यूमिंग कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज माय टाइम हियर, इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका ग्राफ विल बी लाइक दिस, कॉन्केव अप. अच्छा मैं इस ग्राफ में ए वाले साइड में नहीं जा रहा हूं. आई एम नॉट प्लॉटिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस साइड. व्हाई आई एम नॉट प्लॉटिंग हियर? इधर क्यों प्लॉट नहीं कर रहा हूं मैं? व्हाई एम आई नॉट प्लॉटिंग दिस वे? इधर क्यों प्लॉट नहीं कर रहे? So because time cannot be negative. Excellent. Time cannot be negative, so time can never be negative. इसलिए ध्यान रखना अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, if I am having positive acceleration, in that case the graph of displacement and time will be concave up, है ना? जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, I'll write here, when acceleration is positive, displacement and time graph will be concave up. देखो इसकी कॉन्केविटी ऊपर की तरफ रहेगी. ऐसा कब होगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कॉन्केविटी ऊपर की तरफ कब होगी? जब वो ग्राफ, जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. सो इफ माय एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, if my acceleration is positive, in that case displacement and time graph will be concave upward. Am I precisely clear with this everyone? इशिता तुम्हें समझा ये? Yes. ओके, तुमने ये डाउट पूछा था ना, ये कोई और था? ओके, इज इट Right. ओके? अच्छा समझ आ गया. ध्यान रखना जब भी आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, व्हेनेवर वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा उस केस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ विल बी कॉन्केव अपवर्ड. अच्छा भाई, अब मुझे बताओ अगर मेरा ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इफ आई एम डीलिंग फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तभी क्या रहेगा? ग्राफ कॉन्केव अप होगा या कॉन्केव डाउन होगा? Concave down. Concave down. कॉन्केव डाउन. सो अगर मैं यहां पे लिख दूं सेकेंड पॉइंट, if acceleration
is negative, then displacement and time graph will be concave down. So अगर आप इसका ग्राफ प्लॉटिंग करोगे, so the graph will be something like this. So मान लो अगर आप ये वाले एक्सिस पे if you are taking time over here, और ये एक्सिस पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, अगर मैंने ये एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट पकड़ा है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा. This will be concave downward. समझ आ गया पॉइंट? अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, if your acceleration is positive, in that case the graph of displacement and time will be concave upward. And whenever I am having negative acceleration, जब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा. Is it precisely clear with everyone? सभी को समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड कब होगा? तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड तभी होगा जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. And if I am having negative acceleration, in that case the graph of displacement and time will be concave downward. Is it clear with everyone? Medans, समझ आ गया ये पॉइंट? Yes, sir. Okay, remaining student, Ankita, Dia, Rashia, is it clear with all? Yes, sir. Okay, good. सब लोग बोलना बेटा, नहीं आएगा मुझे रोक के पूछ लो. Ishita? Got it, sir. Okay, Naisha, is it clear? Yes, sir. Shubham, Trisha? Yes, sir. Okay. Yes, अच्छा, sir. चलो ठीक है. मैं अभी नीट का कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ. लेट्स सी कौन कर पाता है. मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ बना के आपसे कुछ पूछूंगा. सो लेट मी टिक द टाइम हियर, और यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ. सो ऑन द वाई एक्सिस वी आर हैविंग डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है. सो हियर वी आर हैविंग टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, राइट? सो इधर टाइम और इधर डिस्प्लेसमेंट, और मैंने ग्राफ ऐसे बना के दिया तुम्हें. अब ये ग्राफ देखने के बाद आपको मुझे बताना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है. तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन में क्या है, इज इट पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये पहला ऑप्शन. दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और तीसरा पार्ट में पूछ रहा हूं मैं आपसे कि स्पीड बढ़ रहा है कि स्पीड घट रहा है. ये 3 क्वेश्चन है एक्चुअली. आप लोग पहले एनालाइज करो, फिर मैं एक एक करके सब पे आऊंगा. What are the conditions, whether acceleration is positive कि negative, velocity positive है या negative है, speed बढ़ रहा है कि घट रहा है. चलिए कौन बताएगा, कोई एक ही बताओ मुझे. लेट्स स्टार्ट विथ अंकिता. तुम बताओ बेटा, एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. एक्सीलेंट. ओके, वेलोसिटी? एक्सेलरेशन पॉजिटिव. अच्छा, हाउ यू हैव डिसाइडेड कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव? कैसे डिसाइड किया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है? So because गेस किया?
So because acceleration is the rate of change of velocity. So what? Acceleration can be positive and velocity can be negative. This is possible ना, एक ही ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाए, ये तो है पॉसिबल। ये शुभम, 1 सेकंड, एक सबको एनालाइज करना है, मैं जो पूछूंगा सबको बताना है। मुझे बताइए, अंकिता ही बोलेगा पहले, इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा कि इज इट पॉसिबल टू हैव पॉजिटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन एट द सेम टाइम? बोलो बोलो, जो समझ में आ रहा है, गलत सही कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी आर डिस्कसिंग, मैं सिर्फ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ नहीं, हमें डिस्कस करना है। क्या ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाए और एक्सेलरेशन उसी मोमेंट पे नेगेटिव हो जाए? ये पॉसिबल है क्या? सर कहना है। वेट वेट वेट, अलकम, अभी अंकिता बोलेगा सिर्फ। अंकिता बोलो बेटा, पॉसिबल है क्या टू हैव वेलोसिटी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव एट द सेम टाइम? जस्ट डिस्कस, हाँ, जस्ट डिस्कस विथ मी, डिस्कस करो मेरे साथ, तभी बात बनेगा। है क्या पॉसिबल है, हाँ या ना? Right. ओके ठीक है, चलो शुभम, 3 लोगों ने रेज किया हैंड, शुभम, नाइशा एंड निशिता। ओके, आई विल स्टार्ट विथ शुभम। शुभम पहले तो मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव? Acceleration positive व्हाई इज इट पॉजिटिव? because it's concave up. ओके डन, ग्रेट। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? Velocity is positive ओके नो प्रॉब्लम। वेलोसिटी पॉजिटिव शुभम, हाउ कम? because the slope is positive. हाउ यू हैव डिसाइडेड द स्लोप? Because it's an acute angle. It's acute angle, excellent, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। समझो अभी जो ये बोल रहा है शुभम, इज गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट और The slope will give velocity वेलोसिटी, and the करेक्ट। सो अगर आपको यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे, इफ यू ट्रेस द टेंजेंट हियर, तो ये जो टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, वो एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? What which angle is there? It is acute. acute. अगर ये एंगल एक्यूट है और मुझे पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt, तो इसका मतलब कि स्लोप मेरा पॉजिटिव है, और अगर स्लोप पॉजिटिव इंप्लाइज कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, सो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर शुभम। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, और tan थीटा पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, करेक्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट स्पीड, बढ़ रहा है कि घट रहा है? Sir, it's increasing. It's increasing. Why is it increasing? So because the graph is going up. नहीं, आप सोच के मुझे एक चीज बताइए, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन Yes. both are in same direction, Acceleration. हाँ, Yes. if velocity and Velocity is acceleration, positive and acceleration is constant, so speed will increase. हाँ, whether it is constant or variable doesn't matter, but if velocity and acceleration both are in same direction, तो लॉजिकल बात है स्पीड बढ़ेगा ही। अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो स्पीड घटेगा। यस या नो? Yes. Is it fine? Is it clear everyone? Yes. Can I got disconnected? Yes, बोलो बेटा। Sir, I got disconnected. Can you repeat? Yes, I'll repeat this. The concept here is कि as the graph is concave up, implies the acceleration is positive, पहली बात। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है टेंजेंट बनाने के बाद, ये स्लोप मेरा एक्यूट एंगल आ रहा है, एंड इफ दिस एंगल इज एक्यूट इंप्लाइज कि वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पे स्लोप एक्यूट एंगल बन रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है।
तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गया, ये दो पार्ट अपने को मिला। नाउ वी नो कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ेगा। एंड इफ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन इन दैट केस स्पीड विल डिक्रीज, है ना। तो इस केस में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव एंड स्पीड विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? Yes. Okay. Nimay, can you hear me? Nimesha, can you hear me? Yes or no? चैट बॉक्स में चैट करो पहले। आई विल नॉट परमिट यू टू अटेंड द टुडेज लेक्चर। मैं आज का लेक्चर तुम्हें अटेंड नहीं करने दूंगा। यू आस्क योर पेरेंट्स टू कॉल मी फर्स्ट, राइट। तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने के बाद ही तुम्हें आगे के लेक्चर्स में बैठने का परमिशन मिलेगा, बिकॉज यू अटेंड द ज्वाइन लेक्चर एवरी डे लेट। निमेशा, कैन यू हियर मी? सर आई गेस इसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। आई थिंक सो। Okay, fine. Once you get connected, I will disconnect him. ऐसे नहीं चलेगा। I am not going to teach like this. और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा भी नहीं। We are here to learn. और अगर तुम ही लेट करेगा, then it is not possible. चलो आगे बढ़ते। Next, I'll take a simple example, one more example, like this. Again, I'm going with the same relation. So displacement and time here. So time either and displacement on this axis. And the graph is something like this. बताइए इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, स्पीड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? ओके, शुभम एंड इशिता, ठीक। 3 आ गया, नाइस। ओके, बाकी लोग सिर्फ 3 लोग बता रहे। मैदांश? यस सर आई गॉट इट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद शुभम को पिछली बार पूछा था, Sir, even नाइसा। I got. ओके गुड, दिस टाइम नाइसा से स्टार्ट करेंगे। नाइसा बोलो बेटा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव? Sir, negative. ओके, हाउ यू हैव डिसाइडेड दिस? कैसे डिसाइड किया ये? Sir, because it is a downward curve. It's a downward curve, correct. Concave down. Correct, excellent. Okay, what about velocity? Is it positive, negative? Sir, negative. नेगेटिव। Oh, okay, negative. Why negative? वन Sir, सेकंड। because it's an obtuse angle. It is making an obtuse angle ki acute angle? Yeah. Obtuse. Oh no, angle. it's acute angle. It's acute angle. So velocity has to be positive. Yes. Yeah, it's positive. Yes, बिल्कुल it's positive. इस nice था, just check here. अगर आप यहाँ पे tangent trace करोगे, so if I'll be tracing Yeah, tangent, sir, got it. this angle is acute, so slope is positive, and once we are having slope positive implies ki velocity is positive. Okay, now what about speed? Is it increasing ki decreasing? Decreasing. Decreasing, correct. Both are in opposite directions, so therefore it is decreasing. Fine. So what if the acceleration and velocity both were negative? Then the speed would have increased or decreased? It will obviously it will increase, क्योंकि acceleration speed is a scalar quantity ki vector quantity? Scalar. Scalar. So no need to discuss about directions plus या minus. अब मुझे बताओ जिस direction में there is velocity and if acceleration is also in the same direction, whether it is positive side or negative side, speed will increase.
अगर Yes. acceleration and velocity both are negative, then speed will increase in negative direction, negative side. And if acceleration and velocity both are positive, then in that case, speed will increase in the positive direction or positive side. Is it fine? लेकिन अगर acceleration और velocity दोनों positive हो या दोनों negative हो, speed बढ़ेगा. अगर एक positive हो और एक negative हो, then in that case, speed will decrease. Is it fine? Yeah, sir. Okay. Chalo, let me take another graph. This time here on this axis. Let me make question like this. बताइए. Okay. Naisha, Shubham, Medans, Harsha. Okay. ठीक. कौन बताएगा इसमें? कोई एक बता दो. Yes, sir. Over here, acceleration would be positive because it's an upward curve. Okay, fine. Velocity. Velocity would be negative. Correct. Negative. Correct. Speed And increasing, speed decreasing. would be positive. Decrease. Or decreasing. है ना? Because both are in opposite directions, so obviously speed will decrease. Okay. Is it clear with everyone? सभी को समझ? Okay. Shall I take more problem of this type? कि समझ में आ गया? इस टाइप का और लूं कि समझ गया? समझ में आ गया. Okay. समझ आया. Sir, हाँ. how is velocity negative? Okay, velocity negative. I know beta that the slope of displacement and time graph ds by dt. So displacement और time graph का slope velocity देता है. This is the graph of displacement and time. And if you want to get the slope over here या किसी भी point पे, then आपको इस point पे you'll have to trace a tangent. आपको इस point पे tangent draw करना पड़ेगा. अब मुझे बताओ ये जो tangent मैंने इस point पे plot किया, ये tangent पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में कैसा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज. अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इफ इट इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल, इन दैट केस स्लोप विल बी पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव. सो और मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का ये स्लोप ही वेलोसिटी देता है ना? ये स्लोप ही वेलोसिटी देता है. अब देखो यहाँ पे अगर एंगल ये ऑब्ट्यूज बन रहा है मतलब स्लोप नेगेटिव है, और अगर स्लोप नेगेटिव है इंप्लाइज कि वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? दिस विल बी आल्सो नेगेटिव. Okay. इज इट फाइन? Yes. ओके, क्लियर. शैल आई टेक मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप? एक और लू की समझ गया कॉन्सेप्ट? समझ गया समझ कॉन्सेप्ट? गया सर. ओके, समझ गया. ठीक. और नहीं लेता अभी. चलो क्वेश्चंस. मैं तुम्हें I'll give you the graph of क्वेश्चन. देखिए, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. जेई मेंस का सवाल है. अ बॉल इज
projected vertically upward with 40 meter per second, full stop. Trace the graph of number 1 acceleration versus time, number 2 velocity versus time, and number 3 displacement versus time from t equal to 0 second to t equal to 8 second. करिए. G acceleration due to gravity, you have to take 10 meter per second square. Okay. Anyone? Sir, just give us 2 minutes. Okay, ठीक है. नाइस, आ गया तुम्हारा, ये सॉल्व हो गया. Sir, I'm solving it. Just a minute. Okay. 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 Got it. Okay. So 2 आंसर्स आए. नाइस, तुम्हारा भी आ गया ना. एंड अंकिता, 2 आंसर्स वी आर हैविंग. ओके. रशिया का भी आ गया. ठीक है. चलो मैं भी करता हूँ, साथ में आप लोग मैच करो, देखो किसका सही है. यहाँ से हमने ये ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है. वी आर प्रोजेक्टेड दिस अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर एक्ट होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ. नीचे की नीचे. तरफ. करेक्ट. तो जी आपका एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कन्वेंशनली हम ऊपर का डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे, तो नीचे वाला डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, माइनस. तो मुझे बताओ कि ये बॉल यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और बाद में फिर ये बॉल नीचे आएगा. ये पूरे प्रोफाइल के लिए, मतलब पूरे पाथ के लिए हर बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव है. ओके. सो पहले तो आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लो, Straight line. स्ट्रेट लाइन, एंड दैट टू बी इन नेगेटिव साइड. बरोबर ना. सो यहाँ पे आपने टाइम पकड़ लिया है
and where we are taking acceleration in meter per second square. तो इसका जो ग्राफ होगा, this will be something like this. Acceleration हर बार वही रहेगा, that is minus 10 meter per second square, and this is up to 0 second to 8 seconds. Yes या no? Is it fine with this? समझ आ गया तब पॉइंट? अब देखो, ये बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, when this ball will be at maximum height, तो मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? Zero. So its velocity becomes zero at the maximum height. Now we can go by the formula v is equal to u plus at. मैक्सिमम हाइट पे 0 हो गया, so 40 minus 10t. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, टाइम आपको कितना गिर गया? 4 सेकेंड्स. मतलब ये बॉल को ऊपर जाने में 4 सेकेंड का टाइम लगेगा, और ये बॉल को वापस आने में भी 4 सेकेंड का टाइम लगेगा. So it will take 4 seconds to go up and it will take 4 seconds to come down. Yes या no? टोटल आपका 8 सेकेंड है. अब मुझे बताओ 0 to 4 सेकेंड जब ये बॉल ऊपर जा रहा था, तो वेलोसिटी पॉजिटिव था कि नेगेटिव? फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 0 to 4 बॉल ऊपर जा रहा था, बॉल ऊपर जा रहा था. जब ये बॉल ऊपर जा रहा था, उस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव था कि नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव. एंड वाज इट इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज हो रहा था? Decreasing. डिक्रीजिंग. अच्छा, at 4 second velocity becomes 0. What about after 4 second and before 8 second? मतलब 4 to 8 second के बीच में क्या हो रहा है? The velocity will increase in negative direction. Yes, correct. So if I'll be replicating this in graph, अगर आप इसको ग्राफ में replicate कर लोगे, so this will look something like this. So इस एक्सिस पे टाइम, इधर आपका वेलोसिटी हो गया. So this is 4 second. This is my 8 second. ये वेलोसिटी आपका पॉजिटिव हो गया 40 मीटर पर सेकेंड पे, और यहाँ का वेलोसिटी आपका नेगेटिव हो गया -40 मीटर पे. ऊपर जाएगा तो +40 और वापस आएगा तो -40 टकराने के वक्त में. सर लेकिन 8 सेकंड पे वो 0 हो जाएगा ना? 4 सेकंड पे वो 0 होगा. जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तभी ये 0 है. देखो 4 सेकंड पे वो 0 हो रहा है. 4 सेकंड के बाद वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव साइड में बढ़ना चालू करेगा, और जब 8 सेकंड पे वो वापस से टकराएगा तो उसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड ही होगा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में ना होके वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ. यस या नो? यस या नो? इज इट क्लियर विथ दिस? यस. ओके, ग्रेट. ये आ गया था. कितने लोगों का सही किया था ये ग्राफ? So I got it. एक्सीलेंट शुभम. बाकी लोग? मैदांश So आया था even ग्राफ? I got it. Yes, sir. ओके, ग्रेट. और किसका आया था? So even I got it. Sir, even I got it. ओके, ग्रेट, वेरी गुड. ये जेई मेंस का सवाल है बेटा. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है तो जेई में कुछ स्टफ पूछता है क्या? कुछ भी नहीं. बस द थिंग इज कि यू नीड टू हैव अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ जाना चाहिए स्मूथली, और बाद में उसका मैथमेटिक्स. ठीक, अभी से इतना पढ़ के रखोगे तो जब भी आप 11th में जाओगे आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा. हाँ, एडवांस के लिए करोगे तो बहुत कुछ और नया नया आएगा पढ़ने को. खैर, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. कॉनकेव अप होगा कि कॉनकेव डाउन होगा ग्राफ? Concave down. Concave down. How you have decided this? Because the acceleration is negative. Yes, थ्रू आउट एक्सेलरेशन नेगेटिव है. अगर थ्रू आउट एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब ग्राफ थ्रू आउट कॉनकेव डाउन होगा. अच्छा अब मुझे बताइए कि 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड, फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? फ्रॉम 0 टू 4 बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है? ओके, ग्रेट. और फ्रॉम 4 सेकेंड टू 8 सेकेंड
जब वो वापस आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? Decrease. डिक्रीज हो रहा है. सो विल इट बी लाइक दिस कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ कॉनकेव डाउन होगा, 4 सेकंड के बाद ये ग्राफ वापस डिक्रीज होने लगेगा. तो ऐसा if I'll draw this, this is my 4 second, ये मेरा 8 सेकेंड हो गया. हाँ या ना? देखो ना, जीरो ग्राफ हमेशा आपका कॉनकेव डाउन है. कॉनकेव डाउन क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है. देखो फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा था 4 सेकेंड टू 8 सेकेंड फिर डिस्प्लेसमेंट घटना चालू कर गया क्योंकि वो बॉल वापस नीचे आने लगा, है ना. और 4 सेकेंड पे इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इसका एरिया निकाल लो. हाफ इंटू 4 इंटू 2 दैट विल बी 80 मीटर. Is it clear with this? Is it clear with this? Yes या no? समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? हाँ या ना? ग्राफ क्लियर हो गया ये? Yes. ओके गुड. समझ गया पक्का सबको? Sir, मुझे एक हाँ. डाउट है. हाँ बोलो ना. 4 to 8 सेकंड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होगा? मतलब अर्थ अपना ग्रेविटी का डायरेक्शन चेंज करता है कि हर बार नीचे ही लगता है? जैसे आप मुझे बताओ कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हर बार ऊपर नीचे लगेगा कि कभी ऊपर है कभी नीचे भी लग सकता है? नीचे ही लगेगा. तो अगर आपने नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव पकड़ा है तो चाहे वो बॉल ऊपर जाए या चाहे वो बॉल नीचे आए, एक्सेलरेशन हर बार किधर लग रहा था? नीचे. तो हर बार नेगेटिव होगा. ओके सर. ओके गुड. ये ग्राफ, तीनों ग्राफ समझ में आया सभी को? हाँ या ना? Sir, so in every question which is like this, acceleration will be negative or not? नो इट डिपेंड्स. हाँ अगर ग्रेविटी के लिए करोगे तो आप हर बार एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा. फॉर ग्रेविटी इट इज द केस. लेकिन मैं अगर कुछ भी रैंडम खुद से बना के दे दूं ग्राफ, देन इट कैन चेंज. यस या नो? Is it fine with this? Sir, हाँ बोलो. so in the third graph, how did you get the displacement as 80 meter? We can have by two ways. The first way is to find the area of velocity and time. मुझे पता है Yes, sir, velocity. but there is initial velocity, so So you what? did it. No problem. Just you calculate the area ना. It's 40 over here. यहाँ पे आपका 40 है ये range में. So half into 40 into 4, that is 40 into 2 and that is 80. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा way if you want you can go by this also. I'll write here. अगर आपको चाहिए तो आप एक और लॉजिक से जा सकते हो. कैसे? यूज द कंसेप्ट s is equal to ut plus half at square implies s will be equal to initial is 40 और टाइम आपने 4 सेकेंड लगाया प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू 4 का स्क्वायर. सो s will become what? 160 minus 5 into 16, so this will become 80. This is what? 160 minus 80 implies that displacement will be my 80 meter. तो चाहिए तो आप ऐसे निकाल दो. This is your method number 2. Okay, Or sir. if you want you can calculate the area also, जो आपको सही लगे. Okay, is it clear? Okay, is it clear everyone? Shall I move ahead? आगे बढ़े?
Yes, sir. ओके चलिए, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लेकिन जेई का। आई टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो मैं आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये ग्राफ बना के दिया है, आपसे बोल रहा है t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये सब दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है ट्रेस द ग्राफ ऑफ नंबर 1 वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बनाइए। फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। प्लॉट करो। Okay. Anyone with any answer? Sir, can you give some time? Okay, fine. एक बात बता देता हूँ, जब भी एक्सेलरेशन 0 रहेगा ना, उस केस में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी a straight line. If my acceleration is 0, in that case, displacement and time graph will be a straight line. Sir, here you have mentioned that velocity is 0 meter per second. So, in the first, in the 2 seconds, the velocity should be 4 meter per second, right? So, Correct, correct.
So how can the velocity, initial velocity be zero? It can be zero. For example, on road, car is initially at rest, and suddenly we have given a provided acceleration of 2 meter per second square. So with time the velocity of car will increase, बराबर ना? But initially the car was at rest, मतलब कार initially ground पे था और वो रेस्ट पे रखा खड़ा था, वो मूव नहीं कर रहा था. आपने क्या किया, सडनली यू प्रोवाइडेड द एक्सेलरेशन. तो जैसे तुमने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, ड्यू टू एक्सेलरेशन द वेलोसिटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, and with time velocity will increase, right? And here what I'm saying is कि my velocity is 0 meter per second at the time 0 second, मतलब initially. So initially the velocity was 0 second, then it became 4 seconds. Yes, from 0 it became 4 meter per second in 2 seconds, from 0 second to 2 seconds. At 0 second the velocity was 0 meter per second. Am I clear with this? समझ आ गया point? Sir. Okay. चलो, shall I solve this? Yeah, sir. Okay. First case, तो पहले तो हम इस इंटरवल में बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ. So इस एक्सिस पे आप वेलोसिटी ले लो, on this axis we are having time, right? तो यहाँ पे हमने टाइम प्लेस किया और इस एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले लिया मीटर पर सेकंड पे, और यहाँ पे हमने टाइम ले लिया सेकंड्स पे. अच्छा ठीक है. नाउ वेलोसिटी 0 था इनिशियली, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी वाज 0. इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करना चालू हो जाएगा. सो वेलोसिटी विल इंक्रीज. अच्छा, इसके बाद ये इंटरवल में फ्रॉम 2 सेकंड टू 4 सेकंड एक्सेलरेशन 0 है. अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तभी वेलोसिटी के साथ क्या होगा? विल इट रिमेन Velocity will remain the same. सेम. सो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन ओवर हियर, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा यहाँ से. फाइन. अब देखिए, तो यहाँ तक का तो प्लॉटिंग हमने कर लिया. दिस इज फॉर 2 सेकंड्स. ये हमारा 2 सेकंड के लिए होगा, और ये दिस विल बी फॉर 4 सेकंड, और यहाँ का वेलोसिटी हमारा 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. इज दिस प्रिसाइजली क्लियर? Yeah, sir. ओके. अब ये इस इंटरवल में क्या होगा, फ्रॉम 4 सेकंड टू 6 सेकंड, यहाँ पे क्या होगा? व्हाट विल हैपन हियर? वेलोसिटी विल इंक्रीज की वेलोसिटी विल डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. अब देखो, सो 4 सेकंड पे वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकंड है. अगर आप यहाँ पे लगाओगे कॉन्सेप्ट, सो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, अगर आप यहाँ पे लगा दोगे u प्लस एटी, सो इनिशियली आप 4 सेकंड पे बात कर रहे हो और 4 सेकंड पे आपका वेलोसिटी 4 है और फाइनल मुझे निकालना है. सो 4 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वी नो इज -2 इनटू फ्रॉम 4 सेकंड टू 2 सेकंड, ये टाइम आपका 2 सेकंड्स का है. So this implies velocity will become what? 4 minus 4 implies that my velocity is what? 0 meter per second. मतलब कि 4 सेकंड पे वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकंड था और 6 सेकंड पे आने के बाद ये वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा. इज इट वेरी वेरी क्लियर? समझ आ रहा है? सो फ्रॉम हियर टू हियर, इस इंटरवल में वेलोसिटी आपका 6 सेकंड पे 0 आ गया. दिस इज माय टाइम इंटरवल ऑफ 6
सेकेंड। समझ रहे पॉइंट, हाँ या ना? So 4 second पे velocity was 4 meter per second, and from 4 second, since my acceleration is negative, therefore velocity started decreasing, and velocity slowly decreases, and at 6 second my velocity becomes 0 meter per second. तो यहाँ से velocity decrease होना चालू किया, slowly it is decreasing, decreasing and decreasing, finally it comes to 0 at 6 seconds. Is it clear with this, everyone? ये ग्राफ सही से ट्रेस हो गया था सबसे? Yes, sir. Okay, good, good. Even I got it, sir. Okay, great. Now we'll have to plot the displacement versus time graph. अच्छा. For interval 0 second to 2 second, displacement versus time graph, will it be concave up की concave down? कैसा होगा ये? Concave up since the acceleration is positive. Positive. Okay, great. So अगर आप displacement versus time graph plot कर लोगे, let me keep time here, and that to be in seconds. I am placing displacement on the y-axis, and that to be in meters. So from 0 second to 2 second, from 0 second to 2 seconds, since my acceleration is positive, therefore the displacement and time graph will be concave upward. यहाँ पे graph concave upward हो जाएगा आपका. Okay भाई. अच्छा, concave upward. अब मुझे बताइए from 2 second to 4 second, Straight from line. straight line, velocity since acceleration 0 है, velocity constant है, तो displacement versus time graph will be straight line. Okay. अच्छा, velocity positive है कि negative है from 2 second to 4 second? Is it positive कि negative? Positive. Positive. तो displacement भी positive होगा. तो यहाँ से okay, great. अब मुझे बताइए from 4 second to 2 seconds, velocity increase हो रहा है या decrease हो रहा है? Decrease हो रहा है, तो concave down. Concave down. Okay. अच्छा, is my velocity positive कि negative? From 4 second to 6 second, velocity is decreasing, that is okay, but velocity is positive ki negative from 4 second to 6? Negative, because the slope is negative. One sec. I am talking about 4 second to 6 second. From 4 second to 6 second, velocity is increasing ki decreasing? पहले ये बता दो. Decreasing. Decreasing. Okay, that is decreasing is correct, but from 4 second to 6 second, velocity is positive ki negative? Positive. 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 So yes, so displacement will be also positive, so graph will be concave down, but क्योंकि acceleration हमारा negative है, तो graph यहाँ से from 4 second to 6 second ऐसा कुछ हो जाएगा. So this interval of time is my 2 second. ये मेरा time interval 4 second है. is of 6 second. चलो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं हम लोग. कितना होगा? एरिया निकाल लो. हाफ इंटू 2 इंटू 4, सो 4, ये बेसिकली 4 मीटर आ गया. ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 8, एंड 8 प्लस 4, तो ये आपका 12 मीटर हो जाएगा. बरोबर ना? Yes. ओके, अब देखिए, विल मूव टू द लास्ट इंटरवल. इसका एरिया निकालो फिर से. हाफ इंटू 2 इंटू 4, सो अगेन इट विल बी 2, सो 12 प्लस 2, हाफ इंटू 12 प्लस 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 16 मीटर्स. ये मेरा 16 मीटर हो जाएगा. सो दिस इज 4 मीटर, ये 12 मीटर हो गया, मतलब यहाँ से 8 मीटर और चला, और आखिरी इंटरवल में फिर से वो 4 मीटर चला. सो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. Just check the graph everyone, and if you are having any doubt, please ask.
Is it clear? Yes, sir. Okay. ठीक. Is it clear to everyone? सभी को clear हो गया concept? Graph सबको clear है? Sir. Okay. आगे बढ़ो और कराऊं इस तरह का क्वेश्चन. Shall I take one more? sir. अच्छा ठीक है, एक और ले लेता हूं. एक और ले लेता हूं. Acceleration on this axis in meter per second square and time here seconds. So plotting will do. आपको दिया हुआ है at t equal to 0, पोजीशन 0 था और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकंड है. सो दिस इज गिवन टू अस इज माय इनिशियल वेलोसिटी. आपसे पूछा है ट्रेस. ट्रेस number 1, velocity versus time graph. Displacement versus time graph. करिए. क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? Yes. ओके, करो.
चलो shall I do this? करूँ मैं? Yes, sir. Got it. Give a minute. Okay, ठीक ठीक. चलो लेट्स प्रोसीड. पहले तो आप ये इंटरवल बताइए फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स वेलोसिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? हम्म 0 to second to 2 seconds में क्या हो रहा है? वेलोसिटी विल इंक्रीज की डिक्रीज? Increase. Increase. So this is my time and this to be I'm taking in seconds, and here I'm having velocity and that we are taking in meter per second, है ना? वेलोसिटी आप यहाँ पे मीटर पर सेकंड में ले रहे हो, राइट? अभी उसका ग्राफ बनायो. So the graph will be something like this. So this is increasing up to 2 seconds velocity. Okay. And this is for 2 seconds. ठीक. कितना हो जाएगा velocity 2 seconds पे? What will be velocity in 2 seconds? 20 meters per second. Correct. 20 meter per second. So the velocity here will be 20 meter per second. Okay. From 2 second to 4 second, what will happen? From 2 second to 4 second क्या होगा? Velocity will decrease. Will it decrease or increase? Again, the acceleration is positive. It will increase. Increase. ठीक है, it will increase, correct. Right now it is increasing, but the increasing rate, यहाँ पे rate of increase was 10 meter per second square, यहाँ पे 5 है, तो slope में थोड़ा सा decrease आएगा actually. तो यहाँ से वो increase तो करेगा, लेकिन increase होने का slope अलग होगा. Yeah, half हो जाएगा slope. हाँ, slope half हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो increase कर रहा था 10 meter per second square से, and here it is increasing with 5 meter per second square. So this will be something like this. Good. ये समझ आया मैदांश तुम्हें? Excellent. Yes, sir. ओके, वाह. 4 सेकेंड, बहुत बढ़िया. कितना हो जाएगा वेलोसिटी इस पॉइंट पे? अगेन कैलकुलेट द एरिया. तो 10 हो जाएगा ना, ये 30 हो गया ना आई गेस. हाँ या ना? कैसे किया देखो, 4 - 2, so ये 2 हो गया और ये आपका 5, तो इसका एरिया हो गया 10 एंड दिस इज 20 ऑलरेडी, so 20 + 10, so ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस इंटरवल फ्रॉम 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड? वेलोसिटी विल इंक्रीज की डिक्रीज इन 4 to 6? डिक्रीज, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है. सो इस इंटरवल में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा. देखो यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज होगा, and this will be ऐसे हो गया. And this interval of time will be my 6 seconds. ये जो मेरा टाइम इंटरवल है ना, ये आपका should be 6 seconds. देख, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये 2 सेकंड में देखो कितना डिक्रीज होता है. सो आप यूज कर लो v = u + at. v u आपका यहाँ का वेलोसिटी मुझे मालूम है 30, सो 30 - 5 × 2, सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 30 - 10 implies कि जो मेरा वेलोसिटी आएगा that will be equal to 20 meter per second. Is it clear? So at the 6 second the velocity will again it will reach to 20 meter per second. Is it fine with this question? ये ग्राफ सही है? कितने लोगों ने सही किया है ग्राफ प्लॉटिंग? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कितने लोगों ने सही प्लॉट किया है? I got it.
Good, Shubham. Sir, even I got. I got Sir, even I got. Okay. Now we'll plot the graph of displacement versus time. So displacement versus time का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, ये सब जेई का क्वेश्चन है, मेंस का, ऑब्वियसली एडवांस में ऐसा नहीं पूछेगा. So it is tougher for NEET and is of the same level for JEE mains, not advanced, obviously. यहाँ पे मेरा टाइम है, and here we are taking time in seconds, and in this axis we are taking displacement in meters. चलिए, ये वाले इंटरवल में फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड ग्राफ कॉनकेव अप होगा कि कॉनकेव डाउन होगा? Concave up. Concave up. Okay, so the graph will be concave up इस इंटरवल में. Okay, and this is up to the time of 2 seconds. Fine. बताइए, फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड ग्राफ कॉनकेव अप की कॉनकेव डाउन? Concave up. अगेन इट विल बी कॉनकेव अप, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से हो जाएगा कॉनकेव अप, क्योंकि स्लोप में चेंज आ रहा है, ऑब्वियसली बात है. So the graph here will be again concave up, and this will be the for time interval of, ये जो मेरा हो गया, ये टाइम इंटरवल हो गया मेरा 4 सेकंड. अच्छा, फ्रॉम 4 सेकंड टू 6 सेकंड ग्राफ विल बी कॉनकेव अप की कॉनकेव डाउन? Concave down. Concave down. Yes, the graph will be concave down, and this is the interval. Yeah, this is of 6 seconds. अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, इस इंटरवल में कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 2 इंटू 20, सो दिस विल बिकम 20 मीटर. होगा या नहीं 20 मीटर? Yes. ओके, नाउ यू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट हियर. तो इसके लिए आप ये पूरा एरिया निकालो. ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 2 इंटू 10. तो ये वाला एरिया आपका 10 हो गया बेसिकली, इतना वाला एरिया 10 हो गया, और ये एरिया हो जाएगा 40. सो ये टोटल हो गया आपका 50, और 50 प्लस 20, सो ये डिस्प्लेसमेंट आपका 70 मीटर का होगा. डू यू एग्री विद 70 मीटर? ये पूरा एरिया निकालो ना. तो ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, सो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10, सो दिस विल बी 10, और ये हो जाएगा 2 इंटू 20, सो दैट विल बी 40. 40 प्लस 10 ये हो गया आपका 50, और पहले से ये 20 था, सो दिस विल बिकम 70. एक समझ बात बना या नहीं? अच्छा, अगर आप कंफ्यूज करोगे तो आप एक काम करो, यहाँ का आपको पता है 20, आप यूज कर लो ऐसा, S इज इक्वल टू UT, देखना आपको 50 आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर इंप्लाइज S विल बी इक्वल टू 20 इंटू ये टाइम टोटल 2 सेकेंड्स, प्लस हाफ इंटू 5 इंटू वॉट, दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 उड़ गया, सो इंप्लाइज S विल बी इक्वल टू वॉट 40 प्लस 10, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 50 मीटर. देखो यही आया था आपका 50 मीटर, सो 50 प्लस वो 20 पहले से चल चुका था, तो ये टोटल हो जाएगा 70 मीटर्स. इज इट क्लियर विद दिस? इज इट क्लियर विद दिस? समझ आ रहा है कि डाउट हो रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है. ओके, अच्छा लास्ट में देखते हैं. अभी ये सब उसी को धीरे समझेगा, धीरे धीरे जो रेगुलर अटेंड करेगा लेक्चर्स को, रेगुलर पढ़ेगा, वरना इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू टू कोप अप. लास्ट इंटरवल में हम बात करते हैं, ये वाले इंटरवल में. चलिए यहाँ पे आप एरिया निकालो इस इंटरवल में, कितना हो जाएगा? अगेन दिस विल बिकम व्हाट हाफ इंटू 2 इंटू 10, सो ये वाला आपका अगेन फिर से ये 10 हो गया, और ये आपका फिर से कितना हो जाएगा 40, यानी ये फिर से मेरा 40 हो गया, सो दिस विल बिकम 50, और ये 70 पे था, तो 70 प्लस 50 ये कितना हो जाएगा 120 मीटर. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. Sir, I'm not understanding how you're finding the displacement. एरिया वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया इज डिस्प्लेसमेंट. सो यू कैलकुलेट द एरिया ओवर हियर. ये ट्रायंगल का एरिया निकालो, हाफ इंटू 6 माइनस 4, दैट इज 2 इंटू 10, तो ये आपका एरिया 10 हो गया, एंड दिस विल बिकम 6 माइनस 4, दिस इज 2 और दिस इज 20, सो ये आपका 40 हो गया, सो टोटल दिस विल बी 50. सो ऑलरेडी ये 70 पे था, 70 में 50 और ऐड कर देना इस एरिया को, 70 प्लस 50 विल बी 120.
एक मिनट, am I precisely clear to everyone? क्लियर है क्या, हाँ या ना? डाउट हो गया, समझ में आ रहा है? शुभम, इज इट क्लियर? शुभम, वेदांत, Yes. ओके। टफ हो रहा है बेटा कि समझ रहा है? ये थोड़ा टफ है। ओके, शैल आई गो लिटिल डाउन, नीचे चला जाओ कि ये लेवल पे मेंटेन करूं? समझ रहा है इस टाइप का प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक। त्रिशा, इज इट क्लियर? Yes. ओके, नाइशा, Yes, sir. ओके, अंकिता, दिया, Yes, sir. Yeah, Okay. sir. रशिया, इशिता, इज इट क्लियर? Yeah, sir. ओके, शुभम, तो ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे दूं या वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दूं, तो वहां से आप डिस्प्लेसमेंट या टाइम का ग्राफ या बचा हुआ एक और ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? कैन यू प्लॉट द ग्राफ्स? अब ये देखो, ये तीन में से एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये तीन में से कोई एक आपको दे देगा, वेदर इट इज एक्सेलरेशन टाइम या वेलोसिटी टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, और बाकी दो प्लॉट करने के लिए बोलेगा। बताओ, कर पाओगे प्लॉटिंग इस तरह का? विल यू बी? Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल कराता हूँ, एक पक्का समझ गया फंडा? पक्का क्लियर हो Sir, गया? हाँ बोलो। सर अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे देते हैं और बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओनली डिस्प्लेसमेंट टाइम, नॉट वेलोसिटी, so will we be able to directly plot the displacement time graph? Yes, by seeing the acceleration time graph you can find out the nature of displacement time graph। वो तो पता चल जाएगा आपको, if it is positive concave up and if it is negative concave down, ये तो पता चल जाएगा। जहां तक रहा बात ये पोजीशंस निकालने का ना, फॉर दैट यू विल हैव टू यूज द काइनेमेटिक इक्वेशंस। उसके लिए आपको काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ नहीं है, तो आप एरिया नहीं निकाल सकते हो। In that case, you will have to use the kinematic equations. S is equal to ut plus half at square and all that. Is it fine? Okay. Is it clear with everyone? Shall I take more problem of this type? कि समझ आ गया सभी को इस टाइप का प्रॉब्लम? समझ आ गया? हाँ या Can ना? you take one more? One more, okay. Okay. I'll take one more. मान लो वेलोसिटी टाइम प्लॉट करके दे दिया तुम्हें। I'll not plot acceleration time this time. थोड़ा चेंज करता हूँ। Here it is time and that to be in seconds. On this axis we are having velocity and that is in meter per seconds. So we are having velocity here in meter per second and the graph is something like this. So time here you are measuring in seconds. Time इस केस में हम seconds में measure कर रहे।
और आपसे पूछा गया ट्रेस नंबर 1, acceleration versus time graph, and number 2, displacement versus time graph. चलो करूं मैं प्लॉट, shall I Sir, plot can this? you? Okay, ठीक ठीक ठीक, do it. Done, sir. Okay, चलो we'll plot this. सबसे पहले तो एक्सीलरेशन टाइम का प्लॉटिंग कर लेते हैं. And time here we are taking in seconds. और इस एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे, we are having acceleration and that to be in meter per second square. चलिए, from 0 second to 2 seconds, what is the acceleration? Is it positive or negative? Positive. 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 Okay, so here my acceleration is positive. That is of, ये acceleration अपना है 2 meter per second square का, and this is up to the time interval of 2 seconds.
Correct. Acha, between 2 second to 4 second, what is the acceleration? 0. So that's 0. 0. So it will be correct. This is up to a time interval of 4 seconds. So ये मेरा आ गया 4 seconds. Okay, fine. Up to this, from 4 second to 5 second, what is the acceleration? From 4 second to 5 second, what is the acceleration? ये interval में कितना है acceleration? 4 to 5. बोलो डरता क्यों है गलत होने से? What is the acceleration in 4 to 5 5? meters per second square. Yes, correct. 5. 5 meter per second square. Very good. So this will be somewhere here, just for 1 second. And this is of from 4 second to 5 second. And this one is of, okay. Again, the last interval from 5 second to 10 second. What is the acceleration? Negative. Eh? What is the acceleration in the last interval from 5 second to Minus 3 meters per second square. Yes, correct. It's minus 3 meter per second square. Excellent. So ये interval यहाँ हो गया. And that to be from here to here. So इस interval में this is from 5 second. And this is up to 10 seconds. And its magnitude is minus 3 meter per second square. So this is the graph of acceleration versus time. Is this graph precisely clear to everyone? Sir, बोलो ना. so for 0 to 2 seconds, how is the acceleration 2 meters per second square? Yeah, sir. The It's 5 meter per second. It's 5 meters per second square. Yes. I've done the wrong calculation. 10 minus 0.25. Correct. Thank you. Thank you. ये गलत किया calculation. So अभी बराबर है? Yes. Okay, ठीक है. Is it fine with the calculation, everyone? Acceleration versus time graph plot हो गया? Plotting समझ में आ गया acceleration versus time graph का? Plotting of acceleration versus time graph. Is it fine? Is it clear? Okay. Yes. Now we'll move to displacement versus time graph. We'll plot. ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा. Displacement versus time graph. So displacement we are having here in meters, and इस एक्सिस पे हम टाइम ले लो, and that we are taking in seconds. ठीक है, चलिए प्लॉटिंग करना चालू करते हैं. पहले इस इंटरवल में देखो, फर्स्ट on this interval acceleration is positive, and since we are having positive acceleration, so the graph will be concave upward. और मैंने क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया था, बट एट t इक्वल टू 0 आपको एज्यूम करके चलना है कि x इज इक्वल टू 0 मीटर पे था पार्टिकल. तो पहले कॉनकेव अप होगा ग्राफ 2 सेकेंड्स तक. सो ग्राफ विल बी कॉनकेव अप. So the graph will be concave up. And this is up to 2 seconds. Is it precisely clear? Yes.
और ये हमने कहां तक प्लॉट कर लिया 2 सेकंड्स तक. ओके, फ्रॉम 2 सेकंड टू 4 सेकंड व्हाट विल बी द ग्राफ? 2 सेकंड से 4 सेकंड तक ग्राफ Straight line. स्ट्रेट लाइन. सिंस माय एक्सेलरेशन इज 0, सो इस इंटरवल में ग्राफ विल बी straight line. Okay, done. And this is up to interval of 4 seconds. Okay, from 4 second to 5 second what will be the graph again? Concave up की concave down? Concave up. Concave. ठीक है, so इस इंटरवल में भी ग्राफ हमारा concave up हो गया. And this is up to 5 seconds. Fine. Last interval from 5 second to 10 second. Will it be concave up, be concave down? Concave. Down, na? Concave down. And this one is my last interval of 10 seconds. Okay. Do I make sense? Okay, fine. चलो पहले केस में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालो इस इंटरवल में. 10 meters. कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 2 इंटू, हाँ करेक्ट. दिस विल बी 10 meters. एक्सीलेंट शुभम, जम गया तुम्हें ये. चलो इस इंटरवल में बताइए कितना होगा फॉर दिस इंटरवल? 20 meters. 20 मीटर. 20 meters. हाँ 10 ऑलरेडी था तो ये 30 मीटर हो जाएगा. हाँ या ना? ये इंटरवल में चलो फ्रॉम 4 सेकंड टू 5 सेकंड, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? कितना होगा इसका? फ्रॉम 4 सेकंड टू 5 सेकंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? Sir, I think 32.5. लेट्स सी, ये हाफ इंटू 1 इंटू 5, सो दिस विल बिकम 2.5. ये मेरा 2.5 हो गया. एंड दिस इज 1 इंटू 10, सो दिस विल बिकम 10. मतलब ये 12.5 हो जाएगा. सो 30 प्लस 12.5 मींस दिस विल बी 42.5. मीटर्स. आप एरिया सिर्फ ये मत निकाल देना, पूरे ये एरिया चाहिए अपने को विथ टाइम एक्सेस. वी नीड कंप्लीट एरिया विथ टाइम का एक्सेस. तो देखो ये आपका ट्रायंगल है बेसिकली, ये ट्रायंगल हो गया. सो हाफ इंटू 1 इंटू 5 दिस इज 2.5 और ये 1 इंटू 10, सो दिस विल बिकम 10. तो ये आप टोटल ऐड कर दोगे, सो 10 प्लस 2.5, सो टोटल दिस विल बी 12.5. तो 30 मीटर तक ये पहले था, 30 प्लस 12.5, सो दिस विल बिकम 42.5. Do you agree with this? Yes या no? Do you agree with this? Yes. Yes. ठीक. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. Okay, so मीटर्स में. अच्छा लास्ट में चलो ये इंटरवल में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? हाफ इंटू 5 इंटू 15. हाउ मच दिस विल बी? So it would be 37.5. So then 80 meters. हाँ, हाफ इंटू दिस विल बी हाफ इंटू 5 इंटू 15, सो 75/2. कितना हो जाएगा ये? This will be equal to 37.5 meters, right? Yes. So 42.5 plus 37.5 will be how much? 80 meters. 80 meters, correct. So this will be the graph actually. Sir. हाँ बोलो. Sir, in the exams, like
if we go for exam, then we trace these graphs on graph papers, right? No, they will give you the graph in the options and you have to select from the options. Oh, okay. Is it fine? Is it clear with this? Yes. Okay. सभी को समझ आ गया ये कैलकुलेशंस? सभी को समझ आ गया ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? हाउ विल प्लॉट दिस ग्राफ? इज इट क्लियर एवरीवन? नाइसा, मेदांश? Yes, Yes. Okay. Ankita, Kadan, Diya, is it clear? Yeah, sir, it's clear. Rashia, is it clear for you? Yeah, sir. Okay. Then Ishita, Shubham का ठीक है. Trisha? yes, Trisha? Okay. निमय का तो ऑडियो का ही प्रॉब्लम है. Fine. चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ. आई एम टेकिंग फ्रॉम द जेई बुक इटसेल्फ. क्वेश्चन लिखिए. A particle starting from rest accelerates at the rate of alpha meter per second square for some time. Starting from rest accelerates at the rate of alpha meter per second square. ठीक है, छोड़ दो, some time रहने दो. And then deaccelerates and then deaccelerates at the rate of beta meter per second square to finally come to rest. मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ और रेस्ट में चला गया. सो पहले एक्सेलरेट किया and then it is deaccelerating at the rate of beta meter per second square to finally come to rest. Full stop. If total time of travel is t second, if total time of travel is t seconds, उससे पूछा है find maximum velocity and total distance traveled by particle. करिए इसको सॉल्व. This is from DC Pandey book. अरिहंत बुक से है ये. Sir, so we can solve this question by graphs or do we have to use kinematic equations? You can solve by any way. So I'll suggest you to go by graph. But if you want to go solve without graph also, it will work. तो आप ग्राफ से करो, मैं दोनों अप्रोच से करूंगा. Okay, sir.
Sir, if the total time is given and so how will we find the maximum velocity? That is If what you have, only the that is what you have to think. Think on it. I'll give you 1 minute proper time. Think. सब कुछ तुम्हें पता है, सिर्फ उसको अप्लाई करना है, nothing else. Okay, shall I discuss this? just a minute. Okay. ओके, चलो मैं करूँ इसको कि बन रहा है? Are you able to solve this? Sir, is the maximum velocity alpha t1 plus beta t? But I have not given you T1 and T2, so I don't expect answer in terms of T1 and T2. Sir, but What have I given you? I mean that it first it accelerates and then it deaccelerates. So Correct. at the point it starts to deaccelerate, we can consider it as T1. Right? Okay. My point is, have I given you T1 and T2 in the question? No. So I'm not expecting. I'm not expecting Where is answer in it terms of alpha t by 2? alpha t by 2. Okay, fine. There is some kind of calculation error. Huh? Please have a look on the calculation. Shubham, have understood my doubt, my point? Yes, sir. I understand. So I have given you three variables, three terms I have given you in the question. It's alpha, beta, and t. So I'm expecting answer in terms of only these three quantities, which is alpha, beta, and t.
So you can't add any other variables, whether it is T1, T2 or whatever. Chalo, let's see. Is it alpha by t? नहीं, मैं कर देता हूँ ना. Let's see. So I'll plot the graph first. Let me plot the graph first. So for graph, here I am having time, and here I am having velocity. See, for the first, for the some time, it is accelerating at the rate of alpha. So पहले तो ये accelerate कर रहा है. रेस्ट से स्टार्ट हो गया और मैक्सिमम चला गया और बाद में ये डीएक्सेलरेट कर रहा है, एंड इट इज कमिंग टू रेस्ट आफ्टर डीएक्सेलरेटिंग, राइट. ये जो आपका पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर आई एम हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी. दिस इज माय पॉइंट वेयर वी आर हैविंग मैक्सिमम वेलोसिटी. अब देखिए, this the total time is known to me, which is t. Let me assume that my interval here is of time t1 and this interval is of my time t2. Let me assume this. बराबर है क्या? T1 और T2 हमने assume कर लिया. मुझे क्वेश्चन में दिया है that my time t is nothing but that is the summation of T1 plus T2. So this is given to us, that this T1 plus T2 is your complete time, which is t over here. So this t is my T1 plus T2. Now, if we'll concentrate here, what can I say? That my alpha is V max minus 0 over time interval T1. Can I say this? Yes, या no? Can I say this? शुभम बोल सकते क्या हम? Can I say this? Yes. Okay. Remaining student, V max. What is alpha? Alpha, you know, acceleration is my final velocity minus initial velocity over time. As you can see, the final velocity here is V max and initial here is 0. So the alpha, which is the slope of velocity and time graph, is V max minus 0 by the interval of time, which is T1 over here. So implies that I'll be getting alpha as V max over T1. So if I'll be cross multiplying here, can I say that my T1 is nothing but that is equal to V max by alpha? Keep this as equation number 1. Can we say this? Can we say this? Yes, or no? Yes. Okay. Okay. Now come here. For this interval, do you have acceleration ki retardation? क्या है आपके पास? Retardation. So that will be negative acceleration. So for this interval, can I say that my minus beta or retardation, this is equal to the final velocity which I am having 0 minus the initial velocity which I am having is V max, क्योंकि ये interval के लिए this is my initial velocity and this becomes my final velocity upon the interval of time t2, implies what? That minus beta is minus V max by t2. This minus and minus will get cancelled from here, and that too, what we are getting, that my t2 is nothing but that is equal to V max by beta. Let me place this as my equation number 2. So I am placing this as my equation number 2. Is it fine? First you tell me that equation number, are you clear with equation number 1 and equation number 2? Are these two equations clear? Yes or no? Yes. Okay. Now you do one thing, add both the equations. Adding equation number 1 and equation number 2. So we are adding them. So once you will add this equation 1 and equation 2, so what I'll be getting? Will I be getting this? T1 plus T2 is equal to V max by alpha plus V max by beta. Yeah. हाँ, वो आएगा? हाँ sir. Okay. Now I know that T1 plus T2 is nothing but that is equal to T. So अगर आप यहाँ T प्लेस कर दोगे और यहाँ से आप V max को बाहर निकाल दो, what will be getting? 1 by alpha plus 1 by beta. हाँ, 1 by alpha plus 1 by beta. So this implies what? That T max is V max. अगर आप LCM ले लोगे, this will become beta plus alpha by alpha into beta.
So cross multiply this. So what we'll be getting that V max is alpha into beta by alpha plus beta into T. Agreed with this? Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? Is it fine with the calculations, everyone? Yes. Okay. अंकिता समझा बेटा कि कैलकुलेशन टफ गया? हाँ समझा। Good. है कुछ भी नहीं इसमें, but the thing is you need to have a proper calculation. Calculation अच्छे से होना चाहिए. शुभम, वेदांश, त्रिशा, Yes, sir, got it. okay. समझा सर. Okay. Dia, have you heard? Is it clear with you, beta? Yes, sir. Okay, ठीक है. ठीक. Distance तुम खुद से निकाल लेना, मैं अभी नहीं बताऊंगा. Area you have to calculate. So you have to calculate this area. अगर आप एक बार ये एरिया निकाल लोगे, बहुत आसानी से एरिया निकल जाएगा. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट आपको पता चल गया विच इज वी मैक्स, और बेस आपको पता है टोटल टाइम. सो अगर आप इसका एरिया निकाल दोगे, विल गेट द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. सो एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ विल गिव. Sir, it's alpha beta t square upon 2 alpha plus 2 beta. Yes, correct. Excellent. Excellent. Is it clear with all? Yes sir. चलो आज के लेक्चर समझ में आ गया ढंग से? हाँ सर. ओके ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और ग्राफ्स के ऊपर काम करेंगे हम लोग. और आज हाँ, मैंने DPP8 अपलोड नहीं किया ना अभी, आज करता हूँ मैं. I'll upload this today. Okay. Is it clear with everyone? Yes sir. Sir. समझ में आ गया सभी कॉन्सेप्ट्स? Yes. Okay, fine. So we'll wind up for today. Next lecture Bye, में आगे sir. discuss. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Bye sir. Thank you sir. Bye bye bye. Bye, sir. Thank you. Bye bye.